It's a very big number. So this number is going to enhance. ఇంకా విద్యార్థుల సంఖ్య పెరగాలని, ప్రతి విద్యార్థి కూడా తన విద్యా గమనంతో పాటు విజయాలు సాధిస్తూ ముందుకు సాగాలని, విద్యార్థి విజయానికి కారకులైన తల్లిదండ్రులు, అలాగే ఇందాకే సార్ చెప్తున్నారు ఉస్తాద్ అని, గురువులు అందరూ కారకులైన ఎందరో ఉన్నారు, వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెబుతూ ఇప్పుడు ఈనాటి చీఫ్ గెస్ట్ ముఖ్య అతిథి మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారిని స్వాగతించేందుకు మనమంతా సిద్ధంగా ఉన్నాం. వారిని స్వాగతించిన తర్వాత గ్రూప్ ఫోటో దిగేటప్పుడు మళ్ళీ అందరూ ఎవరెవరి సీట్లలో వాళ్ళు కూర్చోవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఒక సీనియర్ అడ్వైజర్గా ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, మైనారిటీస్ వెల్ఫేర్ కోసం కృషి చేస్తున్న జనాబ్ షబీర్ అలీ గారు వచ్చారు. వారికి స్వాగతం పలుకుతుంది వేదిక. ఇప్పుడు మనమంతా ఎదురు చూస్తున్నాం. मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि आप लोग खड़े हो जाएं. हमारे हरदिल अजीज और डायनामिक वज़ीर आला आली जनाब ఇప్పుడు పాలమూరు జిల్లాల కొండరెడ్డిపల్లె, కొండరెడ్డిపల్లె, కొండరెడ్డిపల్లెలో కొన్నదొక తల్లి, కొన్నదొక తల్లి. పాలమూరు జిల్లాల కొండరెడ్డిపల్లె, కొండరెడ్డిపల్లె, కొండరెడ్డిపల్లెలో కొన్నదొక తల్లి, కొన్నదొక తల్లి. విద్యార్థుల జీవితంలో చాలా స్వీట్ మెమరీ. గారు శిల్పకళా వేదికలో గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3 పిల్లలతోటి గ్రూప్ ఫోటో దిగారు. ఇవాళ టిమ్రిస్ తెలంగాణ మైనారిటీస్ ఎక్సలెంట్ సమ్మిట్ వెనక సీఎం గారి ప్రేమ ఉంది, సీఎం గారి కన్సర్న్ ఉంది. సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ను పిలిచి ప్రత్యేకంగా మైనారిటీస్ విద్యార్థుల్ని గ్రీట్ చేయడానికి ఈ సభ ఏర్పాటు చేశారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి మన ధన్యవాదాలు తెలియచేద్దాం. ఇంకో ముఖ్యమైన మాట, తాలీం సే తరక్కి అనేది కేవలం టిమ్రిస్ నినాదమే కాదు, ఆనరబుల్ సీఎం గారి విధానం. అది ఎక్కడ కూడా 18 గంటలు ప్రతిరోజు పనిచేసే ముఖ్యమంత్రి గారు విద్యాశాఖ కోసం తన మనసును పూర్తిగా అంకితం చేసి విద్యార్థుల అభివృద్ధి కోసం, ముఖ్యంగా బాలికల అభివృద్ధి కోసం చేస్తున్న కృషికి మరోమారు గట్టిగా చప్పట్లతో ధన్యవాదాలు చెప్దాం. ఇప్పుడు ఐ రిక్వెస్ట్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఫర్ ఎ గ్రూప్ ఫోటో. ఇప్పుడు अली जनाब इज्जत माब ए रेवंत रेड्डी साहब हॉल में तशरीफ ला चुके हैं. हमारे हरदिल अजीज वज़ीर आला ने जो ख्वाब देखा था तालीम से तरक्की, उसकी आज सबसे खूबसूरत ताबीर हमारे सामने मौजूद है. मैं हमारे वज़ीर आला के लिए सिर्फ एक शेर कहना चाहूँगा, उसके बाद आप ज़ोरदार तालियां बताइए. तू जिए हज़ारों साल, तू जिए हज़ारों साल और हर साल के दिन हो 50,000. बजाइए तालियां. हमारी दुआ है सीएम साहब की उम्र लंबी हो और तेलंगाना रियासत दिन ब दिन चौगनी तरक्की करते रहे. ये उनका ख्वाब है और ख्वाब की ताबीर का छोटा सा नमूना आज आप इस हॉल में देख रहे हैं कि 839 तालिबे इल्म जो यहाँ से पढ़कर काबिल बने हैं, नौकरियां हासिल किए हैं और अपने कॉलेज, अपने उस्ताद और जो है अपने रियासत का नाम, अपने वज़ीर आज़म का नाम रोशन कर रहे हैं. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యుల్ని, మంత్రివర్యుల్ని, పెద్దలందరినీ వేదికపైకి మీ కరతాళ ధ్వనుల మధ్య ప్రేమగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఆనరబుల్ సీఎం, చీఫ్ గెస్ట్ ఆఫ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఈవినింగ్, ఆనరబుల్ సీఎం గారు, సభాధ్యక్షులు అజరుద్దీన్ గారు, గౌరవ మంత్రివర్యులు, గౌరవ సలహాదారులు, గౌరవ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఇంకా ఎందరో పెద్దలు వచ్చారు. అందరికీ స్వాగతం. పాలమూరు జిల్లాల కొండరెడ్డిపల్లె, కొండరెడ్డిపల్లె, కొండరెడ్డిపల్లె
ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్పిరేషన్ మరెవరో కాదు, స్టూడెంట్ వయసు అంటే విద్యార్థి వయసు నుంచే ఒక నేతగా ఎదిగి తనకు తానుగా తన కాళ్ళ మీద తాను నిలబడి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రిగా చాలా సందర్భాల్లో ఆనరబుల్ సీఎం చెప్తారు, ఒక పల్లెలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివి ఈరోజు నేను ముఖ్యమంత్రిగా తెలంగాణ ప్రజలకు సేవ చేసే అవకాశం దొరికింది. మరి రైజింగ్ 2047 లాంటి ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ ఒక గ్లో ప్రపంచాన్ని పంచుతున్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక అద్భుత మనకు ఇన్స్పిరేషన్ తెలియచేస్తూ ఇప్పుడు అందరం లేచి నిలబడదాం, మనదైన తెలంగాణ రాష్ట్ర గీతాన్ని పాడదాం. జయ జయ హే తెలంగాణ. జయ హే తెలంగాణ జననీ జయ కేతనం, ముకోటి గొంతుకలు ఒక్కటైన చేతనం, తరతరాల చరితగల తల్లి నీరాజనం, పదపదాన నీ పిల్లలు ప్రణమిల్లిన శుభతరుణం. జయ తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ, జయ తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ. జానపద జనజీవన జావళీలు జాలువార కవి గాయక వైతాళిక కళల మంజీరాలు, జాతిని జాగృత మరచే గీతాల జనజాతర అనునిత్యము నీ గానం, అమ్మ నీవే మా ప్రాణం. జయ తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ, జయ తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ. గోదావరి కృష్ణమ్మలు తల్లి నిను కడుపంగ, పచ్చని వానేలల్లో పసిడి సిరుల పండంగా, సుఖశాంతుల తెలంగాణ సుభిక్షంగా ఉండాలి, ప్రతిదినమది తెలంగాణ ప్రజల కలలు పండాలి. జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ. జై తెలంగాణ నినాదాలతో మారుమోగుతున్న రాష్ట్రాన్ని యావత్ ప్రపంచం చూసేలాగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్న ఆనరబుల్ సీఎం గారికి ధన్యవాదాలతో బి షఫీయుల్లా ఐఎఫ్ఎస్ సెక్రటరీ టు గవర్నమెంట్ వారి వెల్కమ్ అడ్రస్. Honorable Chief Minister Sri A. Revanth Reddy Garu, Honorable Minister for Revenue Sri Pongaleti Srinivas Garu, Honorable Minister for Minorities Welfare Janab Muhammad Azharuddin Saab, Honorable Advisor Janab Muhammad Ali Sabir Saab, Honorable MLAs, Honorable Chairman, President Saab, Principal Secretary Janab Ahmad Nadim Saab, other officials, all distinguished guests, parents, teachers, students, young achievers. Good afternoon, Assalamu alaikum, Namaskar. It is my great privilege and honor to extend a very warm welcome to our Honorable Chief Minister and all guests to this Telangana Minorities Summit, a celebration of excellence, achievement and aspiration. On behalf of Minorities Welfare Department, I express our heartfelt gratitude to our Honorable Chief Minister for sparing his valuable time and personally joining us to honor the achievers. Sir, your presence today is a great encouragement to every student and every minority youth. Sir, under your leadership, Minorities Welfare Department is working with a vision of Talim Se Tarki, progress through education. Today, 516 minorities
youth who have been selected under Group 1, Group 2, Group 3 and Group 4, as well as 266 students who have excelled in different entrance exams like NEET, IIT, CLAT, etc. Also academic toppers, meritorious students, totaling around 782 achievers have gathered here today to get the honors from our Honorable Chief Minister. On behalf of Department, I congratulate all of you. Telangana is witnessing a golden period for education. Honorable Chief Minister initiatives like Young India Integrated Schools, Young India Skill University are going to transform and bring social transformation of minority youth. One of the most significant transformation taking place in the state is changing the image of the government schools. Because of this transformation, today students are preferring to go to the government schools than the corporate schools. Once again, on behalf of Minorities Welfare Department, I express my deepest gratitude to our Honorable Chief Minister for taking his valuable time, and I also assure you that Minorities Welfare Department will work hard and to realize the vision of Talim Se Taraqi, progress through the education. I also extend my sincere thanks to Honorable Ministers, Advisor, President, Chairmen, and other distinguished guests for your presence. Further, I thank officials of Minority Welfare Department and officials of other departments for their hard work and efforts to make this program successful. Thanking you all. Jai Telangana, Jai Hind. ये थे आली जनाब बी शफीउल्लाह साहब जो आप सबका खैर मकदम कर रहे थे। अब मैं ज़हमत देने जा रहा हूं आली जनाब शब्बीर अली साहब, मुशीर बराए अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना से, कि वो अपने ज़र्रीन ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे बीच आपको तहनीत पेश करने के लिए हमारे हरदील अजीज चीफ मिनिस्टर आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब आपको तहनीत के लिए यहाँ आए हुए हैं। उनका इतना कीमती वक्त रहने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि जो ग्रुप 1, 2, 3, 4 के साथ साथ जो बच्चे मेरिट्स आए हैं, मैं पर्सनल मिलके उन्हें मुबारकबाद दे के उन्हें और जज्बा पैदा करना चाह रहा हूँ कि और आगे बढ़ो, ये सरकार आपके साथ है, ये कांग्रेस की सरकार, रेवंत रेड्डी की सरकार आपके साथ है। तो आज इस महफिल में हमारे मिनिस्टर अजहरुद्दीन साहब, पोंगलेडी श्रीनिवास रेड्डी साहब, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे एमएलएस, चेयरमैन्स और तमाम तलबात और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सबके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। मैं अली जनाब सीएम साहब से कहना चाहता हूं कि आप लोगों से भी कह रहा हूं कि हमारे 14-15 साल के बाद ग्रुप 1 एग्जाम हुआ है। 15 साल तक 10 साल तो चीफ केसीआर की सरकार रही, ग्रुप 1 नहीं हुआ। उससे पहले तेलंगाना की गड़बड़ की वजह से ग्रुप 1 नहीं हुआ। लेकिन हमारे सीएम साहब आते 1 साल के अंदर ही ग्रुप 1 लगाकर आज 37 बच्चे 37 स्टूडेंट्स आज ग्रुप 1 में पास हुए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी ये सरकार के अंदर ही 10-8 साल के अंदर आप लोग होने वाले कलेक्टर्स, एसपी, ये लेवल के ऑफिसर होंगे और आईएएस बनेंगे, आईपीएस हो जाएंगे आप, क्योंकि स्टेट के ऑर्डर के अंदर ये होगा। लेकिन 15 साल में किसी की हिम्मत नहीं थी। ये इतना बड़ा गैप हो गया था कि जब कांग्रेस के दौर में डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की पीरियड में जब हुआ ग्रुप 1 फिर नहीं हुआ था, फिर अब हुआ तो रेवंत रेड्डी साहब के है। जोरदार तालियां होना चाहिए कि आज हमारे 37 स्टूडेंट सीएम साहब वो एक 8 साल के अंदर वो ऑटोमेटिक आईएएस आईपीएस बनकर हमारे जिलों में, हमारे 33 जिलों में हमारे 33 बच्चे हमारे कलेक्टर्स, एसपीस ये रैंक के बनेंगे। ये मामूली बात नहीं है हमारे लिए। इसके साथ साथ ग्रुप 2 के अंदर हमारे आरडीओस बनेंगे, हमारे डीएसपीस बन जाएंगे। ये हमारा अचीवमेंट है। ये हमेशा कांग्रेस की सोच है कि मुसलमानों को सिर्फ छोटे छोटे कारोबार के हद तक नहीं, उनको भी बराबरी का दर्जा देना चाहिए। उनको भी साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर बनना है, ऑफिसर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। यही ख्वाहिश रेवंत रेड्डी साहब की है। हम सब कोई नहीं जानते थे कि रिव्यू मीटिंग के अंदर हमें बुला के बोले कि
मैं मिलना चाह रहा हूं इन बच्चों को। मैं खुद ही से उन्हें मुबारकबाद देना चाह रहा हूं मेरे और हाथों से मैं के तुम लोग को मुबारकबाद देने के लिए अपना वादा पूरा किए और यहां आए। मैं ज्यादा वक्त लिए पर यही कहना चाह रहा हूं कि आप दूसरे लोग भी मेहनत करिए, आगे बढ़िए। बहुत बच्चे नीट में भी जबरदस्त लाए हैं। मैं सीएम साहब से एक आधा मिनट लेते हुए कह रहा हूं कि साहब मैंने परसों कलेक्टर साहब की एक रिव्यू मीटिंग में था तो वहां पर पता चला कि कामारेड्डी के गरीब लड़की, जो गरीब बच्ची जो है, वो बच्ची का नाम अस्मा है, वो लास्ट ये परसों के एग्जाम के अंदर वो इंटरमीडिएट के अंदर सेकंड टॉपर, स्टेट की सेकंड टॉपर है। उसके फादर एक ऑटो रिक्शा चलाते, सेकंड पूरे स्टेट में सेकंड रैंक है। 1000 में 997 मार्क्स लाई बच्ची। और एक बच्ची बाईपीसी में फर्स्ट ईयर में स्टेट फर्स्ट रैंक लाई है, 400 में 499 मार्क्स लेके आई है। ये आपका अचीवमेंट है। आप जो बच्चों को इंटरमीडिएट से लेके अब ब्रेकफास्ट तक भी आप ही सरकार दे रही है, लंच भी दे रही है, इस टेम्बरीज के स्कूल्स में आला साला तालीम दे रही है। फिर एक दफा मैं तमाम नौजवानों को जो मेहनत करके अब आगे आए हैं, मैं मुबारकबाद देता हूं सरकार की तरफ से, हमारे सीएम की तरफ से, मेरे तरफ से सबको मुबारकबाद। खुदा हाफिज, जय हिंद। ये थे आली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब, मुशीर बराए अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना। मैं आज के इस जलसे में आली जनाब पूनम प्रभाकर साहब, इज्जत माब वजीर बराए बीसी वेलफेयर का दिली खैर मकदम करता हूं। शुक्रिया सर। अब आइए हजरात, आली जनाब आइए साहब। मैं पूनम प्रभाकर जी साहब से अदबन गुजारिश करूंगा कि वो मुखातिब फरमाएं। मैं सिर्फ 2 मिनट बोलूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और मंच पर राजेंद्र कई को मंच पर उपस्थित भाई अजरुद्दीन जी और जो इसमें इस जलसे में हाजिर हुए पूरे वीआईपी और सब यहाँ आज इस मौके की जो ग्रुप 1 ग्रुप में सेलेक्ट हुए उन लोग को मैं मुबारकबाद देते हुए, आप लोग अच्छा तेलंगाना स्टेट को एक बहुत बढ़िया स्टेट बनाने में आपका योगदान रही, यही है उम्मीद करते, क्योंकि बहुत साल के बाद ग्रुप 1 का सिलेक्शन चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत प्रॉब्लम्स आने के बाद भी पूरे मंत्रिमंडल यहाँ पूरे हाउस में आप लोगों के मदद में रह के लीगली फाइट करके आप लोगों को नौकरी आने में मुख्यमंत्री जी का योगदान बहुत है। उस पर एक बार तालियों से धन्यवाद करते हुए, क्योंकि ग्रुप 1 बहुत साल पहले हुआ, उसमें उम्र गुजर जाने वाले भी अभी जो आप लोगों को नौकरी मिला बहुत खुशी नसीबत के है। आप ये आपकी जो सेवा है आने वाला तेलंगाना पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज के लिए भी हित में वो क्या कर सकते हैं आप लोग, जो हमको नौकरी मिल गया हम अभी बेफिक्र है ऐसा नहीं सोचना है, और आने वाला दिन में सरकार हम माइनॉरिटी के लिए भी बहुत काम करने की सोच में है। तो आप लोगों के भी जो भी सलाह सूचना है, आने वाला दिन में माइनॉरिटी के लिए भी वेलफेयर में आना है और तेलंगाना आगे बढ़ने के लिए भी आपका वर्क एक्टिविटी ये रहना बोल के मैं बात करते हुए मैं अभी थोड़ा देर से आया, क्षमा मांगते हुए मैं फिर एक बार आप सब लोग मुबारक भेज देता हूं। और अजरुद्दीन भाई के नेतृत्व में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और आगे जाना, पर्टिकुलरली हैदराबाद में हैदराबाद इंचार्ज की मिनिस्ट्री की हैसियत में मुख्यमंत्री जी बहुत बार बोलते हैं आप लोगों के जो काम है स्कीम्स है उसको आगे ले जाने के लिए बोलते हैं। इसलिए आप लोग सब लोगों को तो जो पूछा एलिजिबिलिटी रेशन कार्ड मिल रहा है, और पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी जी आज एक फाउंडेशन डालने वाला है, घर मिलने वाला है, सही जगह 2200 यूनिट का बिजली मुफ्त में मिल रहा है, और फ्री बस में हमारा बहन लोग ट्रैवल कर रहे हैं। सब लोग आप लोगों के लिए भी है, यही सब इस्तेमाल करके आगे जाने के लिए सोचते मैं विनती करते हुए सबको नमस्कार, धन्यवाद। बेहद शुक्रिया आली जनाब पूनम प्रभाकर साहब, आपने बच्चों को मुबारकबाद दी, बेहद शुक्रिया। अब आइए जनाब अली जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब, इज्जत माब वजीर बराए अक़लियती बहबूद से मैं अदबन गुजारिश करूंगा कि वो अपने खिताब से नवाजें। अली जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब। हम सब के चहीते चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, मोहम्मद अली शब्बीर साहब, दानम नागेंद्र साहब,
फ़हीमुद्दीन कुरैशी साहब, अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब, गुलाम अफजल बियानी साहब तो है ही नहीं यहाँ पे, ताहिर बिन हमदान, मोहम्मद उबैदुल्लाह कुतवाल, दीपक जॉन साहब, श्री नदीम साहब, श्री शफीउल्लाह साहब, श्री हमीद साहब, प्रोफेसर शकूर साहब, मोहम्मद असदुल्लाह साहब, सबीता मैडम, तारिक अनवर साहब और जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं और यंग अचीवर्स हैं। पहली बात तो मैं सीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज इस फंक्शन को ग्रेस किया और हम सबको ऐसी खुशी है कि वो यहाँ पे है और उनका जो विजन, एनकरेजमेंट और अनवेवरिंग कमिटमेंट है जो डेवलपमेंट के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए ऐसा है कि वो एकदम एक फिलॉसफी जैसा है। वो एक चाहते हैं कि हर बार माइनॉरिटीज़ आगे बढ़ना चाहिए, उनका काफ़ी ध्यान है और काफ़ी दिन से अगर आप देख रहे हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे स्कीम्स भी दिए हैं और कभी भी माइनॉरिटी के बारे में मैं जब भी कोई चीज़ के लिए जाके पूछता हूं तो कभी भी मना नहीं करते, विदिन सेकंड्स भी नहीं, 2-3 मिनट में ही वो डिसीजन ले लेते हैं और उसके बारे में मुझे बहुत खुशी होती है कि जब सीएम साहब इतना तेज़ी से काम करते हैं तो हम लोग को भी तेज़ी से काम करना चाहिए, हम लोग को भी उनका पूरा साथ देना चाहिए और उनका जो जहाँ तक के माइनॉरिटी डेवलपमेंट है, हम एक वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें एजुकेशन है, स्कॉलरशिप्स है, स्किल डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, सोशल सिक्योरिटी है और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी है। बट जो इम्पोर्टेंट जो इनिशिएटिव्स है वो शादी मुबारक है और जो सब में बहुत इम्पोर्टेंट वो जो है जो चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम है और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स है, फी रिएम्बर्समेंट है, रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट है, प्रोग्राम्स भी है और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स है। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं ये भी एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे सीएम साहब ने आपके लिए एक डायरेक्शन दे दिया है, वो डायरेक्शन बता दिया है, अभी से नहीं जब से आए हुए हैं वो एजुकेशन में बिल्कुल जितना काम अब हो रहा है एजुकेशन में शायद इससे पहले कभी भी हुआ नहीं था और सीएम साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमको एक डायरेक्शन दिया है तो हम लोग उस डायरेक्शन में चलना चाहिए और उस डायरेक्शन में हम आगे चलेंगे तो हम डेफिनेटली हम सक्सेसफुल होंगे। और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं वो जो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 एग्जामिनेशन में है वो स्टूडेंट एक्सेल, IIT, NET और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है, वो एक्चुअली आप लोग को मेंटर बनना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्योंकि आपने जो मेहनत की, जान तोड़ मेहनत की और आपको आज ग्रुप 1 और ग्रुप 2 और अदर इसमें ऑफिसर्स आप बने तो आप लोग को एक मेंटरशिप करना चाहिए। आप लोग को आप लोग सीखे हैं तो आप लोग को दूसरों को भी सिखाना चाहिए क्योंकि वो बहुत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग यहाँ पे खाली एक मूवमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं कि हम लोग ये करना चाहेंगे अगर आप पढ़ेंगे तो अगर तालीम लेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप तालीम नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। आपने पहले भी सुना होगा अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। आपको ये पहले सबको हैदराबाद का एक फेमस मुहावरा है। तो आप लोग आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो ही बनेंगे नवाब, बट लेकिन उसके साथ आपको स्पोर्ट्स भी खेलना पड़ेगा क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, अगर स्पोर्ट्स की बात नहीं करूँगा तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं आप लोग से देखिए, मैं जब मेरे बारे में जब मैं यंग था तो मेरे पास टैलेंट था, बट टैलेंट खाली इनफ नहीं होता है। टैलेंट के साथ आपको मेहनत करना पड़ता है, आपको डेडिकेशन होना पड़ता है और आपको पैशन होना पड़ता है। तो आप लोग जो भी आज आप यहाँ पे बैठे हुए स्टूडेंट, आप लोग बिल्कुल पैशनेट थे, इसी वजह से आप लोग ने आज यहाँ पे आप लोग को आज फेलिसिटेट किया जा रहा है क्योंकि जो गेम होता है इसमें डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, अगर कोई भी चीज़ में अगर आप नहीं अच्छा काम नहीं करेंगे, अच्छा मेहनत जान तोड़ मेहनत नहीं करेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। बिकॉज देखिए सक्सेस एक ऐसी चीज़ है बहुत स्लोली मिलती है आपको, बट लेकिन एक बार मिलने के बाद बहुत फास्ट जाती है, बहुत फास्ट भागती है। तो आप वहाँ पे आप लोगों को हम्बल होना चाहिए, ह्यूमिलिटी से होना चाहिए क्योंकि इसका मतलब ही नहीं कि आप लोग आज बड़े बड़े ऑफिसर्स बन गए और बड़े बड़े ग्रुप 2 जो भी बने तो आपको हम ह्यूमिलिटी से काम करना पड़ेगा। हर एक को एक इंसान के वैसा तरक्की, इंसान के वैसा लेके काम करना पड़ेगा क्योंकि दुनिया में कोई बड़ा नहीं, इंसानी ह्यूमैनिटी एक ऐसी चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोग से
बिल्कुल बहुत सब जितने भी बच्चे लोग हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जो भी आज उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं सबको मुबारकबाद देता हूं। और मैं बिल्कुल सीएम साहब का और जितने भी डिग्निटरीज आए हुए हैं यहाँ पे, जो एमएलए है हमारे, बहुत से लोग हैं, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और सीएम साहब ने हमें एक डायरेक्शन दिया है, वो डायरेक्शन में काम करना चाहिए, एजुकेशन में काम करना चाहिए। उन्होंने जितना एजुकेशन के लिया कोई नहीं किया, तो मैं सीएम साहब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आज ये हमारा प्रोग्राम आप ग्रेस करें सर, और थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह आपके डायरेक्शन में हम चलेंगे, जरूर इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच। స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ లవింగ్ సీఎం గారి మంత్రిత్వ బృందంలో ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్మెన్గా అజరుద్దీన్ గారు ఈరోజు వారి సందేశం అందించారు మైనార్టీ వెల్ఫేర్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ గురించి ధన్యవాదాలతో. దిస్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ హైదరాబాద్, హ్యాపెనింగ్ తెలంగాణ స్టేట్. తమ డెడికేషన్తో, డిటర్మినేషన్తో, ఫోకస్తో, ఫర్మ్నెస్తో హ్యాపీనెస్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పంచుతూ తెలంగాణ వెలుగుని ప్రపంచానికి తీసుకెళ్తున్న బిలవెడ్ సీఎం గౌరవనీయులైన రేవంత్ రెడ్డి గారి సందేశం అందరి కల్పన. పాలమూరు జిల్లాల కొండరెడ్డిపల్లె, కొండరెడ్డిపల్లె, కొండరెడ్డిపల్లెలో కొన్నదొక తల్లి, కొన్నదొక తల్లి. పాలమూరు జిల్లాల కొండరెడ్డిపల్లె, కొండరెడ్డిపల్లె, కొండరెడ్డిపల్లెలో కొన్నదొక తల్లి, కొన్నదొక తల్లి. పాలల్ల పౌరుషము పోతినాదో, పెద్ద పులిలాగా కాండ్రించి లేపినాడే. మైనారిటీస్ ఎక్సలెన్స్ సమ్మిట్ ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు ముఖ్య అతిథులుగా సహచార మంత్రివర్గ సభ్యులు మొహమ్మద్ అజారుద్దీన్ గారు, హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు మిత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రివర్యులు మిత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, ప్రభుత్వ ప్రత్యేక సలహాదారులు మాజీ మంత్రివర్యులు మొహమ్మద్ షబీర్ అలీ గారు, శాసన మండలి చీఫ్ విప్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి గారు, ఖైరతాబాద్ శాసనసభ్యులు మాజీ మంత్రివర్యులు మిత్రులు దానం నాగేందర్ గారు, జూబ్లీహిల్స్ శాసనసభ్యులు యువమిత్రులు నవీన్ యాదవ్ గారు, చేవెళ్ల శాసనసభ్యులు కాలే యాదయ్య గారు, అదేవిధంగా శాసనసభ్యులు మిత్రులు జుల్ఫీకర్ అలీ గారు, మొహమ్మద్ ఫహీం ఖురేషి గారు, ఖుస్రు పాషా గారు, ఉబైదుల్లా కోత్వాల్ గారు, తాహిర్ బిన్ అహ్మద్ గారు, అజ్మతుల్లా వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్ గారు, దీపక్ జాన్ సికింద్రాబాద్ జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు, ఇతర కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, ఈనాడు ప్రత్యేకంగా అభినందించడానికి ఆహ్వానించిన గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4 ఇతర విభాగాలలో నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి గౌరవ ప్రతిష్టలు పెంచిన మైనారిటీ యువమిత్రులందరినీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఈ సందర్భంగా నేను అభినందిస్తున్నాను. तालीम से तरक्की, ये चर्चा करने से पहले जब डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, मोहम्मद अली शब्बीर साहब उस समय पर मंत्री, और आज़ाद साहब दिल्ली से आकर माइनॉरिटियों का हालात देखकर ये नौजवानों को सरकार में हिस्सेदार बनाना, कांग्रेस पार्टी का मतलब सेक्युलर, कांग्रेस पार्टी का मतलब हिंदू मुसलमान दो आंखें, ये बातों में नहीं काम करके दिखाने के लिए उस दिन श्रीमती सोनिया जी के नेतृत्व में 4% रिजर्वेशन आप माइनॉरिटी भाइयों को बहनों को इस राज्य में दिलाए। तारीख गवाह है
बहुत सारे लोग बार बार खिलाफ किए, माइनॉरिटियों को रिजर्वेशन देने का जरूरत नहीं है बोल के आवाज उठाए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक वकालत डाल के रिजर्वेशन हटाने के लिए कोशिश किए। सड़क से लेकर संसद तक जो हमारे परिवार माइनॉरिटी भाइयों का रिजर्वेशन हटाने के लिए कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे कोशिश किए, मगर सोनिया जी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी, आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस पार्टी ने इतना कोशिश किए, इतना ताकत लगाए, मोदी अमित शाह दोनों मिलकर कोशिश किए तो भी नाकामयाब हुआ। मैं इस तारीख से, आज इस मंच से मैं बोलना चाहता हूं, अमित शाह ने तेलंगाना राज्य में आकर छेवेल्ला से ये बात कहा, हमारे हुकूम में माइनॉरिटी का रिजर्वेशन हम हटा देंगे, ये हमारे वादा बोल के अमित शाह जी ने कहा। उसी समय पर हम सब लोग बोले, हिम्मत है तो तेलंगाना राज्य में नहीं, गुजरात में हटा के दिखाओ माइनॉरिटियों का रिजर्वेशन, हम देखेंगे। आपको मुकाबला कांग्रेस पार्टी करने वाला है, सड़क से लेकर संसद तक। जब तक कांग्रेस पार्टी है, इस देश में सेक्युलर फोर्सेस जिंदा रहेंगे। वो सेक्युलर फोर्सेस के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी लड़ने वाला है। इसीलिए आज जो 4% रिजर्वेशन उस दिन आप लोगों के लिए, आपके परिवार, आपके पिताजी माताजी कोई ऑटो चला रहे होंगे, कोई टेलरिंग, कोई छोटे मोटे काम, हाथ के काम, गली में काम, कुछ ना कुछ काम करके, मेहनत करके, पैसे जमा करके आप लोगों को पढ़ाई के लिए मदद की है। मगर पढ़ने के बाद आप लोग क्या बनना है? पढ़ाई का कुछ वजह होना है। पढ़ाई पूरी होने के बाद समाज में इज्जत मिलना है। इज्जत मिलना है तो सरकार नौकरी देना है। सरकार में नहीं, प्राइवेट में भी आपका नौकरी मिलने का कोशिश सरकार करना है। इसीलिए हम लोग 2011 में ग्रुप 1 का परीक्षा खत्म हुए तो 15 साल कोशिश भी नहीं किए। हां, एक बार कोशिश किए पिछले सरकार ने, मगर पूरा क्वेश्चन पेपर्स जिराक्स सेंटर में पल्ली बटानी जैसा बेचते गए। जो पैसे है, जो खरीद सकता है, उन लोगों को ग्रुप 1 ऑफिसर बनाने के लिए पिछले सरकार ने कोशिश किया। पब्लिक सर्विस कमीशन में यहां सब लोग पढ़े लिखे से लोग हैं मंच पे और मेरे सामने भी, जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 एग्जाम कंडक्ट करने के नौकरी देने वाला, उससे बेहतर पढ़े लिखे से वाले रहे तो कौन पढ़ा है, कौन लिखा है, वो क्या कर सकता है, उसको अंदाजा कर सकता है। मगर पिछले सरकार ने यह कहा, आरएमपी डॉक्टर को पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर ने बनाया। छोटे छोटे लोगों को, गली में घूमने वालों को, पिछले सरकार में जो कुर्सी में बैठा हुआ था उनके चमचे लोगों को ग्रुप 1 पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर बनाया। तो वो लोगों को क्या पता है, चलो भाई कुछ ना कुछ मिल रहा है ना, कुछ ना कुछ बेच दो, कुछ ना कुछ ले लो। ऐसे चलाया ग्रुप 1 पब्लिक सर्विस कमीशन की ये पूरा। हम आने के बाद सबको बर्खास्त कर दिए, एक को भी छोड़ा नहीं, मैं सबको साफ कर दिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जिनको चुनते हैं, वो ऑफिस में जाकर दिल्ली में बैठकर पब्लिक से यूपीएससी कमीशन चेयरपर्सन से मिलकर
बिना कुछ कंट्रोवर्सी हर साल ये नौकरियों का फिलअप जैसा कर रहा है इस देश में, 2 दिन दिल में बैठकर पूरा पता कर लेके फिर आके पब्लिक सर्विस कमीशन एक रिटायर्ड डीजीपी ऑफिसर को लगाए। पब्लिक सर्विस कमीशन में माइनॉरिटी मेंबर को भी लगाए, पढ़े लिखे सो आदमी को, क्योंकि उनको माइनॉरिटियों का तकलीफ पता लगता है। उर्दू में अगर कुछ पेपर तैयार करना है तो कुछ समझदार आदमी पब्लिक सर्विस कमीशन में रहने के लिए माइनॉरिटी मेंबर भी पब्लिक सर्विस कमीशन में जगह देकर कांग्रेस पार्टी ने पब्लिक सर्विस कमीशन से ये ग्रुप 1 परीक्षा पूरी की। इल्जाम लगाए, हमारे ऊपर आरोप लगाए, ये सरकार भी ऐसे वैसे किए, ये सही नहीं है, इन लोगों को पूरा परीक्षा हटा दो, नया नोटिफिकेशन देने के लिए बीआरएस पार्टी, केटीआर सब मिलकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके तरफ से हमारा कोई लेन देन नहीं है। मेरा परिवार से या शब्बीर भाई परिवार से नहीं, अजहरुद्दीन भाई के परिवार से कोई हम ग्रुप 1 नौकरी नहीं लिए, हमको मिलने वाले भी नहीं है, हमारे बच्चे परीक्षा भी नहीं लिखे। मगर हम समझे आप सब लोग हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार समझकर अच्छे अच्छे वकीलों को लगा के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़के आप लोगों को नौकरी दिलवाया। इसीलिए आप लोग यहां बैठा हुआ है, आप लोग ग्रुप 1 ऑफिसर बने। 35 साल इस राज्य में आप लोग काम करने वाला है। हमारा नौकरी तो सिर्फ 5 साल के, फिर अगले 5 साल फिर हम परीक्षा लिखना है। हम कामयाब होते ना होते वो बात अलग है, मगर आप लोग 35 साल इस राज्य तरक्की के लिए, तेलंगाना राइजिंग के लिए आप लोग काम करना है। ग्रुप 2 में भी यही आरोप लगाया, वहां पर भी वही लड़कर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़कर आप लोगों को नौकरी दिलवाया। ग्रुप 3, ग्रुप 4, टीचर्स, शबीर अली साहब से मैं बात कर रहे थे, भाई इस बार 11,000 टीचरों को हम भर्ती किए, कितना माइनॉरिटी है मुझे गिन के बोलना, क्योंकि गांव गांव में, गली गली में बच्चों को सिखाने वाले में, देशभक्ति के बारे में बोलने वाले कुछ लोग ऐसा माहौल बना के छोड़ रहे हैं कि माइनॉरिटी बोले तो देश का खिलाफ है। ये लोग ऐसे फैलाने के लिए, भटकाने के लिए, आपस में लड़वाने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे। नहीं, हमारे माइनॉरिटी लोग टीचर बने तो देशभक्ति, देश वीरों को तैयार करने में स्कूलों में कोशिश करेंगे, उन लोगों को टीचर बनाएंगे। इस समाज को सुधारने के लिए उन लोगों का मदद हम लेंगे। अब गिन के मुझे बोलना बोल के मैं शबीर भाई से मैं कहा था। इसीलिए आज यहां पर जो 700 के चिल्लर जो मौजूद हुए, जो डॉक्टर रिजर्वेशन की वजह से, जो इंजीनियर, जो आईएएस, जो आईपीएस, जो एडिशनल एडवोकेट जनरल, पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर, आरटीआई मेंबर, जो भी देखो, आप लोग नहीं पूछे, हम जिम्मेदारी समझे, आपके हिस्सा आप घर तक हम भिजाए। आज मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, उस दिन फिरोज खान को हम टिकट दिए, आप लोग नहीं जिताए। शबीर अली साहब को हम टिकट दिए, आप लोग नहीं जिताए। अजहरुद्दीन साहब को हम टिकट दिलाए, आप नहीं जिताए। फिर भी मेरा मंत्री, मेरा मिनिस्टर हिस्सा आपको जो देने का कुर्सी खाली रख के पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब को मंत्री बनाने के बाद एमएलसी बनाए। आज देखो हर चीज में, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, इंदिरा इंड्लू, 200 यूनिट बिजली, बार बार बोल रहे थे, असेंबली में चर्चा हो रहे थे। ओल्ड सिटी में पूरा बिजली चोरी करते रहते, माइनॉरिटी लोग बिजली का बिल पे नहीं करते। आज मैं हिम्मत से बोलना चाहता हूं, 200 यूनिट बिजली जो मुफ्त में सरकार दे रहा है, सबसे ज्यादा हमारे माइनॉरिटी भाई बहनों के लिए भला हुआ, अच्छा हुआ। सर उठा के जीने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। हर चीज में
आज बस में हमारे महिलाओं को हम जगह दिए, हमारे छोटे छोटे बहना स्कूल को जाने के लिए, कॉलेज को जाने के लिए, नौकरी करने के लिए, कारोबार में जाने के लिए हर महीने में 5,000 10,000 रुपए आज उन लोग बचा ले रहे। ये पैसे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, घर में कुछ खर्चा निकालने के लिए आज इस्तेमाल कर रहे। हर जगह में मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, मेरे लिए हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है। मेरे लिए दो अंक है हिंदू मुस्लिम। जो हिंदू को मिल रहा है बराबर हिस्सा मुसलमानों को देने के लिए हमारा सरकार काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। इसीलिए अब इतना छोड़ो, हमारे शबीर भाई ने 37 ग्रुप 1 ऑफिसर्स बोला और 2 को इसमें नहीं मिलाया क्योंकि वो लोग परीक्षा नहीं लिखे। उन लोगों का शक्ति दिखाए। निकात जरीन बॉक्सिंग चैंपियन को मैं पूरा रूल हटा देके ग्रुप 1 नौकरी दिए। जो लड़की निजामाबाद से गरीब परिवार से निकलकर इस देश का नाम रोशन किए, बॉक्सिंग चैंपियनशिप ले आकर इस देश में तेलंगाना का नाम, इस देश का नाम रोशन किए। निकात जरीन को मैं ग्रुप 1 नौकरी दिए, 3 करोड़ रुपए रिवार्ड भी दिए। मोहम्मद सिराजुद्दीन, जो अजहरुद्दीन साहब क्रिकेट इंडिया कैप्टन जो किया, उनका लेगेसी कंटिन्यूस में सिराजुद्दीन वर्ल्ड कप जिता के नाम रोशन किए। मगर वो 10वीं ने पढ़ा, नौकरी देना उतना आसान नहीं है। मगर कैबिनेट में ले जाकर पूरा रूल को हटा देके सिराजुद्दीन का जो डीएसपी बना, डीएसपी सिराजुद्दीन बना इस राज्य में। मैं सवाल करना चाहता हूं, कोई राज्य में कोई किसी ने किया क्या? दिखाओ। हमने किए। जो राज्य के लिए, देश के लिए अपना नाम रोशन करने वाले को हम लोग उनको पहचानेंगे, उनके तरक्की का जो रिवार्ड देना है इस सरकार तैयार है। इसीलिए आज गरीब परिवारों में छोटे बच्चों को नाश्ता खिलाना मुश्किल हो रहा है। सवेरे उठ के नौकरी में जाना पड़ता, काम में जाना पड़ता, कारखाने में जाना पड़ता। फिर छोटे बच्चों को नहीं खिलाए, नाश्ता नहीं खिलाए तो बच्चे पढ़ेंगे कैसा? और स्कूल को भी गया, पेट में कुछ नहीं है तो क्या सुनने वाला है, क्या समझने वाला है? इसीलिए आज नाश्ता से लेकर लंच और शाम को ब्रेकफास्ट भी देने के लिए आज सरकार वजन उठाए। पहले नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी नहीं था सरकार में, इस साल से हम वो भी शुरू किए। इसीलिए यहां पर जो मंच पे, यहां पर जो बैठे हुए हमारे भाई बहनों से एक ही मेरा गुजारिश है, तकदीर बदलना है तो पढ़ना लिखना, तकदीर बदलना है तो पढ़ना लिखना। नर्सरी से लेके 12 तक अब एजुकेशन में लगना, 12 के बाद स्किल में जाना। आज नामपल्ली में, मल्लेपल्ली में 4 आईटीआईओं को एटीसी बनाया। माइनॉरिटी बच्चे स्किल्ड लेबर है, देखे तो सीख लेते, पढ़े तो भूल जाते। आप लोगों का आदत है, अगर कुछ भी दे दो, राफेल भी आप हाथ में दे दो, आप खोल के फिर जमा करके दे देते। उतना उम्मीद है। इसीलिए from my point of view, nursery to 12th is education, 12th onwards skill, upskill, reskill. दुनिया में स्किल को जितना पहचान है, सर्टिफिकेट को उतना पहचान नहीं है। आज के तारीख में कोई सर्टिफिकेट देकर नौकरी नहीं दे रहा है, आपके स्किल के ऊपर आपको नौकरी मिल रहा है। इतना दिन हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जा रहे थे, कुछ लोग अमेरिका जा रहे थे, मगर आज अपने लिए इंतजार कर रहे जर्मन, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान, जहां पर भी जाओ लाखों नौकरी पड़ा हुआ है। अपने बच्चे लोग स्किल अगर सीख लिए, महीने में 2 लाख रुपए कमाने के लिए किसी को भी तकलीफ नहीं है। परिवार अगर सर उठ के गली में जीना, मोहल्ला में घूमना है तो स्किल सीखना है।
इसलिए हम लोग स्किल यूनिवर्सिटी शुरुआत किए, आईटीआई को एटीसी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर बनाए हम लोग, पॉलिटेक्निक कॉलेज अंडर स्किल्स यूनिवर्सिटी में लेकर आके छोड़ दिए, आज स्किल यूनिवर्सिटी शुरुआत किए। इसीलिए मेरा भाई बहनों से एक ही गुजारिश है, भूल जाओ पुराना इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट को नौकरी मिलता, भूल जाओ डॉक्टर सर्टिफिकेट को नौकरी मिलता, डॉक्टर इंजीनियर को नौकरी मिलता नहीं मिलता नहीं कह सकता हूं, मगर आपके हाथ में स्किल है तो नौकरी मिलने वाला है, 2 लाख रुपए कम से कम कमाने वाला है। काम वाला बन जाओ, काम सीखो, वो एक ही अपना किस्मत बदलने वाला है। इसीलिए आज आप सब लोगों से मिलने के लिए, आप सबको देखकर, क्योंकि मैं बहुत कुछ मेहनत की है, आज मैं आप लोगों को देखे तो मेरा दिल खुशी हो गया, क्योंकि मेरा मेहनत का फल यहां सामने दिख रहा है। जब जिसने मेहनत करता है, जिसने कोशिश करता है, उनको फल देके तो दिल खुश हो जाते हैं। इसीलिए आज आप सब लोगों को बुला के, मिल के, तालीम से लेकर तरक्की तक आप लोगों को आगे ले जाने के लिए आपके भाई रेवंत अन्ना यहां खड़ा हुआ है। आज मेरे सरकार मेरा अकेले मेहनत से नहीं तो मेरा परिवार, मेरे जाति लोग वोट दिए तो नहीं बना, आप सब मिलकर मुझे मदद दिए तो, ताकत दिए तो आज तेलंगाना राज्य का मुख्यमंत्री बनकर यहां खड़ा होकर मैं कोशिश कर रहा हूं। आगे भी मेरा कोशिश जारी रहेंगे, मगर अभी भी कुछ साजिश हो रहा है, इसका नाम SIR के नाम से इस देश का, देशभक्तियों का वोट हटाने के लिए कुछ लोग जीतने के लिए कोशिश कर रहा है। आप लोग देखे वेस्ट बंगाल में, बिहार में, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में, हर जगह जगह में ऐसी कोशिश कर रहा है। बोल रहे थे परसों कुछ लोग, बंगाल हासिल हो गए, अभी तेलंगाना हासिल करने वाले। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, बंगाल में दीदी आपको छोड़ दिया भाई, यहां पर ऐसा कोई खामोश बैठने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ED, इनकम टैक्स, CBI, SIR सब मिले तो भी आपको नहीं जिताने देंगे तेलंगाना में। यहां के जनता को पता है कौन कैसा आदमी है, किसके दिल में क्या है, जहर किसके दिल में है, प्यार किसके दिमाग में है, यहां के जनता को सब पता है। इसीलिए हर वोट बहुत कीमती है, सोने से भी ज्यादा कीमती है वोट हक गया, सब कुछ गए समझो। वोट हक निकालने के लिए, धोखा देने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को कामयाब नहीं होने देना है। आप समझ रहे 2029 नहीं तो 2028 में चुनाव आएंगे, तब देखेंगे भाई। उस दिन वोट जिसने डालेगा आज तय हो रहा है। आज अगर आपका वोट हक निकल गए, उस दिन वोट डालने का हक को आपको नहीं मिलने वाला है। आज ही से आप लोग जो भी बचा है, 60-70 लाख वोट हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हैदराबाद रंगारेड्डी मेडचल में निकाल रहे बोल के अखबारों में पूरा न्यूज आ रहा है, आप लोग भी पढ़े होंगे, मगर ऐसा काम नहीं होने देना। एक 10 दिन जितने भी गली गली में जो बच्चे लोग पढ़े लिखे से घर घर जाओ, हर दरवाजा खटखटाओ, उनके परिवार में कौन कौन है, उनका वोट है नहीं निकाले, 2002 में वोट किधर है, उनका नाम क्या है। उसमें दिक्कत यह है कि 2002 में अगर MD फ़हीम कुरैशी रहा तो आज मोहम्मद फ़हीम कुरैशी लिखे तो वोट निकल जाएंगे। कंप्यूटर नहीं लेने वाला है, MD फ़हीम कुरैशी अलग समझ रहा है कंप्यूटर, मोहम्मद फ़हीम कुरैशी अलग समझ रहा है कंप्यूटर। नहीं तो अजहरुद्दीन मोहम्मद लिखे 2002 में, क्योंकि जब अजहर भाई ने पूरा दुनिया घूमते थे तो अमेरिका में सरनेम बाद में रखते, असल नाम पहले रखते। फिर अब इधर आ गए मोहम्मद अजहरुद्दीन लिखे तो वो भी अलग समझकर ये भी निकाल रहे, वो भी निकाल रहे।
ये छोटे छोटे गलतियां लिखने में, बड़े लोग बोले 100 बकना एक लिखना, लिखने में सही लिखो। पढ़े लिखे से बच्चे लोग आप घर घर जाओ, पूरा वोटर लिस्ट लेके पूरा पढ़ो। बूथ लेवल ऑफिसर सरकार वाले काम किए नहीं किए छोड़ दो, बूथ लेवल एजेंट बनकर एप्लीकेशन पूरा, दरखास्त पूरा आप पूरे करके सरकार में देने का। हर गली में आप लोग एक 10 दिन ये राज्य को बचाने के लिए, जो हमला करने के लिए गुजरात से निकलकर इधर आ रहे, उन लोगों को रोकने का जिम्मेदारी आप लोग लेना है। नहीं तो बाद में अपने को बहुत तकलीफ आने वाला है, ऐसे अगर छोड़ दिए तो। सरकार और कांग्रेस पार्टी, मैं, शबीर भाई, अजहरुद्दीन, सब लोग हम जितना मेहनत करना है हम मेहनत करेंगे, मगर ये बस की बात नहीं है। हर गली में 35,000 पोलिंग बूथ है, 35,000 पोलिंग बूथ में काम चलना है। एक जगह, 2 जगह, 3 जगह में काम हुए तो ये काम होने वाला नहीं है। 35,000 जो पोलिंग बूथ है, हर पोलिंग बूथ में आप एक एक रेवंत रेड्डी बन के काम किए तो अपने को हराने वाले कोई इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए हम लोग सब जोड़कर ये राज्य तरक्की के लिए अच्छे से अच्छा काम करेंगे। जो सरकार से जो मिल सकता है आप लोग पूछने का जरूरी नहीं है, आपके हिस्सा आपके घर पे मैं पहुंचा दूंगा। रमजान में जैसा बिरयानी शबीर भाई मेरा घर पे भेजा रहा है, मैं आपको जो हिस्सा मिल रहा है आप लोगों के घर पे मैं भिजाने का जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और एक बार मैं आप लोगों को अभिनंदन देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। इतने सारे सक्सेस स्टोरीज, एक एक का एक एक स्टोरी है। छोटे छोटे परिवार से आप निकल के आए, बहुत मेहनत करके आप लोग ऑफिसर बने। ये ऑफिसर का मतलब आपको अभी समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि पटसुन तक गली में अपने को थप्पड़ मारने वाले भी आज नमस्ते कर रहा है। शायद अब तो महसूस हुआ होगा, क्योंकि बचपन में मेरे को जो थप्पड़ मारने वाले आज मुख्यमंत्री बनने के बाद सब सलाम मार रहे। यही हकीकत है। सक्सेस सब कुछ लेकर आके देंगे, फेल्यूर सब कुछ है। सो घर में परिवार भी अपने को, अरे भाई इसका किस्मत ही खराब है, अब कितना भी करो ये बदलने वाले नहीं, ऐसे ही घर में भी बोलेंगे। इसीलिए मैं आप सब लोगों को बधाई देकर यहीं मैं आखिरी में, और हज को जाने का हर आदमी, हर इंसान का जन्म में एक मौका लेने के लिए कोशिश करते। इस बार हज को जाने का 7,000 लोग तय हो गए। अचानक केंद्र सरकार ने हर किसी का 10,000 रुपये बढ़ा दिए। भाई करीब लोग जाने का वक्त आ गया, पूरा तैयारी कर लिए, 10,000 कहां से लाएंगे? इसीलिए हमारे कमेटी चेयरमैन का उबैदुल्ला कोतवाल साहब, सब लोग मिलकर मुझे बोले तो कुसूर पाशा जी मुझे मिलकर, साहब ये 10,000 हम कहां से जमा करेंगे? 7,000 लोगों को ये तकलीफ है, आप कुछ सोचो। बोले तो जब भी सरकार से 7,000 लोगों को, हर किसी को 10,000 रुपए सरकार से पैसे मैं दिया। इस देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं किए। वहां पर बस एक्सीडेंट में शहीद हुए तो हर परिवार को मैं मदद किए। जब भी सब लोगों को वहां पर भिजाया। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे फोन किया, भाई ऐसा एक्सीडेंट हो गया, 40-45 लोग मर गए। बोले तो तभी एमएलए, नामपल्ली एमएलए, सबको वहां पर मैं भिजाया। वो सरकार से ने अपने सरकार से उनके परिवार को मदद किए। जब आपको तकलीफ है, आप खुशी में मुझे याद रखे नहीं रखे मुझे कोई परवाह नहीं है, मगर तकलीफ है तो मुझे याद करो, मैं हाजिर हूंगा। धन्यवाद। తాలీం సే తరక్కి అనే స్లోగన్ కి ఆనరబుల్ సీఎం గారు తాలీం తక్దీర్ బదల్నే కే లియే అని చెప్పారు. వారికి ధన్యవాదాలతో ఇప్పుడు మొహమ్మద్ విలాయత్ అలీ, డిప్టీ కలెక్టర్, అల్మాస్ ఫాతిమా, డిఎస్పీ షేక్ సమీనా, గ్రూప్ 2 మైనం లెనెసా ప్రిసిలా, గ్రూప్ 3 హసీనా బి, గ్రూప్ 4 వెంటనే వేదికపైకి రావాలి. తర్వాత విద్యార్థులు అబ్దుల్ సమద్, షేక్ అన్సార్, మొహమ్మద్ సమీర్, ముకరమ్ అహ్మద్, ఆస్మా జబీన్, ఐమాన్ మసీరా. గ్రూప్ 1లో విజయం సాధించి మొహమ్మద్ విలాయత్ అలీ చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఇప్పుడు డిప్టీ కలెక్టర్గా సేవలు అందిస్తున్నారు.
ఇందాక ఆనరబుల్ సీఎం గారు వారి సందేశంలో చెప్పినట్టు పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చి పూర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి యావరేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చి డిప్టీ కలెక్టర్లుగా డిఎస్పీలుగా మారారు. అదిగో ఇప్పుడు విలాయత్ అలీ డిప్టీ కలెక్టర్ గారికి ముబారక్బాద్. అల్మాస్ ఫాతిమా డిఎస్పీ, తర్వాత షేక్ సమీనా డిఎస్పీ గారికి శుభాకాంక్షలు. బహుశా దేశంలో ఎక్కడా సాధ్యం కాదు, సాక్షాత్తు సీఎం గారి చేతుల మీదుగా మీరు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ అందుకుంటున్నారు, శాలువాలు మెమెంటో అందుకుంటున్నారు. షేక్ సమీనా తర్వాత మైనం లెనెస్సా ప్రిసిల్లా. ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఇందాక వారి మెసేజ్లో చెప్పినట్టు ఒక్కొక్కళ్ళు 3-4 సక్సెస్ సాధించారు సార్. గ్రూప్ 4, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 1 ఇన్ని ఏక్సే బడ్కర్ ఏక్ అన్ని టఫ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా చేశారు. ప్రిసిల్లా తర్వాత హసీనాబి. సయ్యద్ అబ్దుల్ సమద్ జేఈఈ మెయిన్స్లో మన టిమ్రిస్ నుంచి 98.78 మార్కులు సాధించారు, అంటే 99%. తర్వాత షేక్ అన్సార్, మీరందరూ ఆ దృశ్యాన్ని చూసి మైమరిచిపోతూ చప్పట్లు కూడా మర్చిపోతున్నారు. వాళ్ళంతా మన తమ్ముళ్ళు, మన పిల్లలు, మన చెల్లెళ్ళు. షేక్ అన్సార్ ల్యాప్టాప్ ఇస్తున్నారు ఆనరబుల్ సీఎం గారు. నీట్లో షేక్ అన్సార్ సాధించారు. ఇప్పుడు సిఏ ఫైనల్ మొహమ్మద్ సమీర్. సార్ సమీర్కు జీసీసీలో కూడా జాబ్ వచ్చిందంట సార్. చాలా ధైర్యంగా చెప్పాడు ఇందాక, నాకు లక్షల రూపాయల జీతం వచ్చిందని. సో తెలంగాణ ఈజ్ ప్రౌడ్ అండ్ హీ ఆల్సో టోల్డ్ ఐ ఫీల్ మై స్టేట్ ప్రౌడ్ అని. తర్వాత ఎఫ్సెట్ అగ్రికల్చర్లో ముకరమ్ అహ్మద్ ఈజ్ బీయింగ్ ఫెలిసిటేటెడ్. ఇంటర్మీడియట్లో ఆల్మోస్ట్ 100%, 9996/1000 అంటే మనం పర్సెంటేజ్లో తీసుకుంటే ఎంత ఉందో తెలుసు. 439/440 ఐమాన్ మసీరాకి, అస్మా జబీన్కి ఇద్దరికి ఇంటర్మీడియట్లో టాప్ ర్యాంకర్స్. మా ఉర్దూ యాంకర్. बेहद शुक्रिया अली जनाब इज्जत माब ए रेवंत रेड्डी साहब हमारे कामयाब तलबा में तहनीत पेश कर रहे थे. अब हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हमारे हर दिल अजीज वजीर आला अली जनाब ए रेवंत रेड्डी साहब को तहनीत पेश करें. मैं शफीउल्लाह साहब को दरख्वास्त करता हूं कि वो हमारे हर दिल अजीज सीएम साहब की तहनीत फरमाएं. आप लोग जोरदार तालियां बजाइए हमारे सीएम